Hello students. So this is another video I have in the series of your word bar EDC. We discussed last session we discussed about session 1, the whole 10 traits of human and many words relating to that. We discussed around 50 words or so. You must have seen that video and now we can go to the next session. So this is the session 2 of your word bar EDC. So what does this session do? Now when we say this particular book, the good thing about this book I realize is that it talks about the earlier session as well in the next sessions. So it forces us to revise these things. You know, when we say you have to revise, you make notes and all. And what do we say? That kindly revise the earlier ones and then you come to the new one. So this is basically forcing us to revise the first sessions during the course of the second session. Okay, you may find a bit of the repetition, but that is forcing us to understand. That's what it is. Okay. Now, session 2, what it says about is every word in the English language has a history, and these 10 are no exceptions. You know the 10 words which we discussed last class? Introvert, extrovert, and altruist, and certain other words, if you recall. Okay, egoist and egotist, those words. So he says every word in the English language has a history, and these 10 are no exceptions, जिनकी हम बात पहले कर चुके हैं. In this section, you will learn a good deal more about the words you have been working with, यानी जिनके बारे में ऑलरेडी हम काम कर रहे थे, working with. In addition, you will make excursion into many other words allied either in meaning, form or history to our basic 10. जो ऑलरेडी 10 हमने लर्न कर रहे हैं उसके अंदर you will make excursions into many other words. excursion का मतलब होता है kind of एंजॉयमेंट के लिए जो ट्रिप्स होते हैं, लेजर ट्रिप्स होते हैं, एक्सकर्शंस होता है. यानी वो कह रहा है कि जैसे आप लुधियाना, सॉरी आप व्हाट डू कॉल कुल्लू मनाली चले गए या मसूरी चले गए या किसी हिल स्टेशन पर चले गए, तो एक्सकर्शन ट्रिप है कि आपने जरा लेजर करने के लिए, यू वर टायर्ड ऑफ वर्किंग इन दिल्ली एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपने कहा चलो 2-4 दिन आराम करके आते हैं. दैट इज द एक्सकर्शन. नाउ ही सेज यू विल मेक एक्सकर्शंस इनटू मेनी अदर वर्ड्स, यानी have an enjoyable experience of learning them, we can say like that. Allied either in meaning, allied मतलब काइंड ऑफ अलायंस वाला होता है, जो आपके साथ मिलकर चलते हों, यानी जो जुड़े हों, इधर इन मीनिंग, फॉर्म और हिस्ट्री टू अवर बेसिक 10, यानी उन 10 से ही जुड़े हुए कुछ और वर्ड डिस्कस करते हैं और वो आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे, फन तरीके से लर्न होंगे. ही इज ट्राइंग टू से दैट. नाउ व्हाट वी से एक्सकर्शन, आई टोल्ड यू ए शॉर्ट जर्नी, स्पेशली वन टेकन फॉर लेजर होता है. Okay, so that is what the short journey है. And then allied, I told you this thing, allied is working together or in alliance. You can very well understand this allied has come from the word allied होता है. Now what is the case कि if you say allied, at times you say the word like this ally, तो यानी वो तुम्हारे अलाइज हैं, अलाई पार्टनर्स हैं. मीन्स जैसे आप पार्लियामेंट में होता है, एक पार्टी दूसरे के साथ अलायंस कर लेती है तो उसके अलाइज होते हैं, यानी वो उसको सपोर्ट करने वाले. अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑपरेट्स विद एनदर, दैट इज अलाई होता है. तो अलाई ग्रुप्स हो जाते हैं. कभी आपने सुना हो न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो अलाइड ग्रुप्स हो जाते हैं, यानी उसके साथ मिलकर चलते हैं. जब कहीं किसी इशू पर डिस्कस करना होता है या अपनी राय रखनी होती है तो वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं, तो वो अलाइड हो जाते हैं, यानी वो आपके पार्टनर्स होते हैं, आपके साथ अलायंस में काम करते हैं. अलाय. नाउ वी से अगर अलाय वर्ड है, तो अगर आप ऐसा ही वर्ड देखोगे तो वो जैसे ये वर्ड अलाय है, तो वैसे ही अगर आपसे पूछूं ये वर्ड की अलय क्या होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही वर्ड है. अगर आपने अलय बता दिया तो फिर मैं पूछूंगा यार अली क्या होता है. फिर आपने अली बता दिया तो मैं पूछता हूँ कि आयल क्या होता है. फिर आयल बताते हैं तो मैं पूछता हूँ आयल क्या. मतलब ये मोर और लेस होमोफोन जैसे ही हैं, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट वैसे ही. और आई टोल्ड यू लास्ट क्लास आल्सो, दीज वर्ड्स विच आर seem similar either by sound or the alphabets and all, they're quite confusing. तो इसका तरीका क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स को आप एक ही जगह पर लिख कर और उनको डिस्कस कर लो तो आपको आसानी हो जाती है. जैसे कि अलय क्या होता है, लेसन होता है. टीचर इज ट्राइंग टू अले योर डाउट्स. अगर आपको याद है तो उसी से एक वर्ड हमारा अलय से एक वर्ड आता है एलिविएशन. ठीक है, एलिविएट करना भी मतलब टू लेसन ही होता है.
हाँ, वो बात अलग है कि एलिवेट करना होता है, वो एलिवेट, वो जो है अपलिफ्ट करना है, वो अलग है। वो जैसे एलिवेटर होता है वैसे वाला अपलिफ्ट होता है, लेकिन ये एलिवेशन करना, एलिवेट करना मतलब रिड्यूस करना होता है ना, अले हो जाता है। देन वी से अली हो जाता है। तो अली मतलब क्या होता है, ये नैरो लेन होता है। अब कभी बॉलिंग एली, अपने वो गेम खेली है जिसमें वो बॉल फेंकते हैं सामने, अब यू हैव टू थ्रो इट एंड देन दिस, वो आपको गिराने होते हैं, तो व्हाट डू यू कॉल इट, वो एली ही होती है ना, तो बॉलिंग एली होती है। तो जब आप कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो एक बीच का रास्ता होता है, इधर भी चेयर्स होती हैं, इधर भी चेयर्स होती हैं, लेकिन एक वॉल साइड पर भी एक रास्ता होता है। तो जो वॉल साइड वाला जो रास्ता है दैट इज नोन एज एली होता है, नैरो लेन हो जाता है। ठीक है, ऐसी एक फ्रेज भी बनी है, मुझे आपसे बात करते करते याद आ रहा है, एक फ्रेज है, उसे हम बोलते हैं बॉलिंग, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली मतलब यूजलेस एफर्ट है। भाई आप उस गली में जा रहे हैं जो आगे से बंद है, तो आपको पैसेज तो मिलेगा नहीं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग इन दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वी से ब्लाइंड एली हो जाता है। तो ब्लाइंड एली यूजलेस एफर्ट हो जाता है। एनीवे, वी आर हियर अगेन एज एली मींस नैरो लेन है, तो जो बीच का रास्ता है वो थिएटर में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं आयल। A narrow path between two rows of chairs is known as aisle होता है। अभी वो बीच वाला रास्ता जो आयल होता है, ये बेसिकली आयल जो है थिएटर में भी यूज कर सकते हैं, आप सिनेमा हॉल में जहाँ जा रहे हैं, ये प्लेन में भी यूज करते हैं, राजधानी ऐसी ट्रेन को भी आयल ही बोल देते हैं, बीच का जो पैसेज होता है। प्रैक्टिकली आया चर्च से है ये वर्ड, अगर आपको याद है तो ये चर्च में आयल होता है। ठीक है, अगर आपको एक फ्रेज याद है, टू वॉक डाउन द आयल होता है, टू वॉक डाउन द आयल मीन्स टू गेट मैरिड हो जाता है, टू गेट मैरिड हो जाता है, दैट इज व्हाट द आंसर इज। टू वॉक डाउन द आयल इज टू गेट मैरिड बिकॉज द ब्राइड कम्स through that passage only with her father or whatever senior, so they walk down the aisle. So when we say she walked down the aisle means she got married, we say like the aisle हो जाता है। वैसे aisle वैसे भी मैंने बताया कि और जगहों पर भी यूज हो जाता है। then we say aisle क्या है, ये aisle जो होता है वो आइलैंड हो जाता है, ये आइल जो है वो आइलैंड है। नाउ राइटिंग वर्ड फ्रॉम 2 to 7, दे आर क्वाइट सिमिलर, बट नाउ वंस यू हैव गॉन थ्रू इट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं आपका दिमाग में रहता है कि अच्छा यार ये वर्ड इस तरीके से चलते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वर्ड्स ऑफ द सिमिलर टोन और हैविंग सिमिलर अल्फाबेट्स एंड ऑल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो उसने अभी हमें ये बताया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो जो वर्ड होंगे वो हम इजीली लर्न करेंगे, ये कहना चाहता है। द ईगो, you know when we saying about ego, I told you the last time is ego is what? Okay, now ego is basically talking about your egoist and egotist होता है। ईगो हमने बोला था, अगर आपको याद है तो ईगो में बोल रहा था कि ईगो सेल्फ होता है, और इस्ट जो होता है मैंने कहा कि वो एक्सपर्ट होता है, अगर आपको याद है तो ईगोइस्ट हमने वहां से बना दिया था। तो ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट, द प्रोनाउन ईगो मीन्स आई। भाई हम सारे के सारे क्या हैं, हम सारे के सारे हम मानते हैं कि हम सारे आई स्पेशलिस्ट हैं। मीन्स कि जब भी कोई हमसे बात करने लग जाता है हम उसकी कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा बताते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। इसका मतलब हमें अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद है, वी आर ऑल आई स्पेशलिस्ट हैं। तो ये कहता है कि द प्रोनाउन ईगो मीन्स आई, आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन ईगो, ईगोइस्ट माइंड, जो सेल्फिश पर्सन होता है उसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न आई होता है। द मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकेबलरी, और ईगोटिस्ट की वोकेबलरी में याद है आपको ईगोटिस्ट हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ईगोटिस्ट क्या था। ईगोटिस्ट वी वर सेइंग द काइंड ऑफ सेल्फिश फेलो होता है, दैट इज ईगोटिस्ट हो जाता है। सो वी कंसिडर लाइक दैट कि ईगोटिस्ट जो है वो आपका, ये आपका सेल्फिश है। ओ सॉरी, दिस ही इज द पर्सन द वन हु इज वेरी प्राउडी, आई एम रियली सॉरी, ईगोटिस्ट है, नो ही इज ईगोटिस्ट है। नाउ कीप द वर्ड्स डिफरेंशिएटेड इन योर माइंड बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक एंड द एडिशनल टी इन ईगोटिस्ट। याद है कल लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था तो हम कह रहे थे कि यार ईगोटिस्ट होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टी है यही टॉक कर रहा है और ये टॉक की वजह से उसे बड़ा बोस्टफुल बना रहा है, इफ यू रिकॉल, जो ब्रगर्ड बना रहा था, ठीक है, तो स्वाश बकलर बना रहा था, तो ईगो टेस्ट हो जाए, ये टी जो है वो उसको
टी आने से टॉक की फीलिंग आ जाती है। ईगो इटसेल्फ हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम लैटिन एज एन इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड एंड इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। ये अपने अपने बारे में बताता है। एज इन, आप जब बात करते हैं व्हाट डू यू थिंक योर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माय ईगो, मतलब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्या क्रिटिसिज्म से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये वो कहना चाहते हैं। ईगो हैज आल्सो ए स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ईगो को हम किसी और तरीके से स्टडी करते हैं, बट फॉर द मोमेंट यू हैव एनफ प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग इनटू दैट। ही सेज कि यार अभी हम पहले इंग्लिश ही सॉल्व कर लें, साइकोलॉजी में जाएंगे तो फिर हमारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, इसलिए हम नहीं कर रहे उधर। अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं कि ईगो मतलब आई से रिलेटेड है, मतलब सेल्फ से रिलेटेड है, बस अभी इतनी ही बात करते हैं। नाउ इससे ईगोइस्ट हो जाता है। तो ईगोइस्ट वी नो, लास्ट क्लास डिस्कस्ड। ईगोटिस्ट वी नो, ब्रेगर्ड एंड बोस्टफुल। ईगो वी नो इज दिस सेल्फ होता है। एंड इस्ट जहां पर भी आ जाएगा वहां पर वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट होगा। अगर आपने बोला कि कार्डियोलॉजिस्ट है, तो लॉजिस्ट में भी तो इस्ट आता है, नहीं आता है? नहीं। तो साइंटिस्ट हो जाता है, तो साइंटिस्ट में भी यहाँ पर क्या हो जाता है, इस्ट आ जाता है। यहाँ तो जहां भी एक्सपर्ट की फीलिंग आएगी, वहां जहां भी आईएसटी होगा वो एक्सपर्ट को बताएगा। तो दीज आर दी वर्ड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ व्हेन वी सेड ईगोइस्ट हो जाता है, आई वुड लाइक टू डिस्कस जो भी आने वाले टाइम ईगोइस्ट हो जाता है। ईगोइस्ट हमने कहा कि वो सेल्फिश है, ओके ना। अगर वो सेल्फिश, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि यार हम सभी सेल्फिश हैं, आप और मैं अपना अपना कंसर्न देखते हैं, लेकिन उस कंसर्न में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक जनरल बात है। बट बाई नेचर वी आर लाइक ईगोइस्ट हो जाता है। दो जो एनिमल्स नहीं है बट हम हैं कहीं ना कहीं, ईगोइस्ट होता है। देयर इज वन वेरी फेमस पोएम इन द नेम ऑफ एनिमल्स। कभी आप पढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन, कि उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उनमें कोई भगवान नहीं होता, वो अपनी गलतियों को किसी से पश्चाताप नहीं करना होता, वहां पर सब इक्वल होते हैं, वहां किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, अलग ही उनकी दुनिया होती है, लेकिन वो सब अलग है। बट एनिमल, वेरी गुड पोम। नाउ ईगोइस्ट, ह्यूमन आर सेल्फिश समवेयर, बट अगर मैं ईगोइस्ट हूं तो आप भी ईगोइस्ट हैं या थर्ड पर्सन भी ईगोइस्ट है। लेकिन अगर ईगोइस्ट से थोड़ा सा ज्यादा अपना कंसर्न लगने लग जाए तो फिर आप ईगोसेंट्रिक हो जाओगे। यानी आपका हर बात का सेंटर क्या है, ईगो है, अपना अपना अपना, वो ज्यादा हो जाएगा। बट अगर आप इसको बोलें ईगो मैनियक हो जाए, तो ईगो मैनियक तो मतलब फिर वो तो मैडनेस की तरफ चला जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैनिया तो कहीं ना कहीं पागलपंती वाला क्रेज हो जाता है, तो ईगो मैनियक हो जाएगा। वो थोड़ा इसका बड़ा भाई हो गया, समझ लो। ईगोइस्ट होना नहीं चाहिए, बट ईगोइस्ट ना होने के लिए तो फिर आपको बुद्धा होना पड़ेगा। अगर आप इगोइस्ट नहीं होना चाहते तो फिर आपको बुद्धा होना पड़ेगा। तो बुद्धा तो खैर अब हम नहीं हो सकते। तो ये तो फर्स्ट स्टेज है ना जो हम चाहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्टेज है जो हम ह्यूमन बीइंग बाय नेचर हैं। बट अगर आप थोड़ा गड़बड़ हो जाते हो तो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाते हो तो ईगो मैनियक हो जाता है। वर्ड ईगो ही रहा, लेकिन हमने उससे एक नया वर्ड डिवाइस कर लिया, लाइक दिस यू कैन सी नाउ। इफ यू आर ईगो एंड ईगोसेंट्रिक, you consider yourself the center of the universe, egocentric होता है। you are an extreme form of egoist हो जाता है, obviously समझ ही आता है। and if you are an egomaniac, you carry egoism to such an extreme that your needs, desires and interests have become a morbid obsession वही क्रेज होता है। मॉर्बिड बड़ा डल, बड़ा ग्लूमी, बड़ा डेथ लाइक होता है, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो बड़ा ही नेगेटिव टाइप का ऑब्सेशन हो जाता है और मेनिया हो जाता है। द इगोइस्ट और इगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्शियस, द इगोसेंट्रिक इज इंटॉलरेबल एंड इगोमैनियक इज डेंजरस। अगर आप देखेंगे तो डिग्री क्या बना रहा है, क्या कह रहा है, इगोइस्ट और इगोटिस्ट कौन होता है, वो ऑब्नॉक्शियस होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो हेट वर्दी होता है। इगोसेंट्रिक क्या है, वो इनटॉलरेबल होता है, ज्यादा ही अपने बारे में बात करता है। 3 इडियट में वो जो एक था ना चैंपियन जो बहुत इंटेलिजेंट था, वो ईगोसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। और ईगोमैनियक, ना मुझे नहीं याद आ रहा उस आदमी का, ईगोमैनियक जो होता है वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। 3 कैटेगरी हो गई, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट जो ऑब्नॉक्शियस है, ईगोसेंट्रिक इंटॉलरेबल है, ईगोमैनियक जो है वो डेंजरस हो जाता है, स्लाइटली मैड या डेंजरस हो जाता है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। Egocentric is both a noun और an adjective। भाई आप किसी को बोल देते हैं he is an egocentric, ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बट अदरवाइज egocentric पर्सन भी हो सकता है, egocentric एप्टीट्यूड भी हो सकता है, तो वहां पर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। व्हाट एन egocentric
हर न्यू रूममेट इज, तो ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर इगोसेंट्रिक। ओके, चलिए, देन ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। तो क्या बोलते हैं इगोसेंट्रिक पर्सन, तो इगोसेंट्रिक अब क्वालिफाई करता है किसको, यहाँ पर पर्सन को क्वालिफाई करेगा तो फिर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दैट। एंड देन टू डिराइव द एडजेक्टिव फ्रॉम ईगोमैनियक एड al, ए कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स से एडजेक्टिव अलाउड। अगर आप ऊंचा, याद है आपको अलाउड और लाउड में डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, तो वी अलाउड थोड़ा ऊंचा बोलकर देखिए क्या बनेगा, ईगोमैनिकल बन जाएगा, ईगो मैनियकल बन जाएगा। हो सकता है यार मेरे जो ये वाला जो वर्ड है जो यहाँ पर आई एम रियली सॉरी एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दिस, यार ये जो वर्ड है इसमें ई कहीं पर उल्टा लिखा होता है, कुछ होता है, वो एक अलग फिनेटिक्स का काम है। आई कुड नॉट रियली find out the क्या नाम है these letters while typing, so I kept it as it is. This may be wrong, kindly forgive me for that. I am not really worried about the pronunciation right now. My concern is, do I know egomaniacal, do I know egocentric, do I know egomaniac? Okay, kindly forgive me for this अगर if there is anything wrong. For sure there is, ये वाला ई जो है उल्टा लिखते हैं, ये वाला ई कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है उसके अंदर, I do not know how it goes, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। ओके, काइंडली फॉरगिव मी ऑन दिस। इगोसेंट्रिक अब तो समझ ही आ गया क्या हो गया, कंसीडर हिमसेल्फ टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इगोमैनियक हैविंग एन एक्सट्रीम कंसर्न फॉर वंस ओन नीड्स एंड डिजायर्स। ऑब्नॉक्शियस हमने पिछली बार ही बोला था, हेट वर्दी एक्सट्रीमली प्लेजेंट होता है। मॉर्बिड मैंने बोला, एबनॉर्मल एंड अनहेल्दी इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट ऑब्जेक्ट्स हो जाता है, मॉर्बिड हो जाता है, अनप्लेजेंट स्पेशली डेथ एंड डिसीज होता है। तो आप इसको मॉर्बिड को भी यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि ये मॉर्बिड किसे कहना चाह रहा है, ये मॉर्बिड यहाँ पर डल को कहना चाह रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ग्लूम को कहना चाह रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। एंड देन वी से ऑब्सेशन, प्रीऑक्युपाइड इन समथिंग अप टू अ वरिंग एक्सटेंट, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कई बार। ऑब्सेस आप कहते हैं ये तेरा ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन मतलब हर टाइम इट हॉन्ट्स योर माइंड, वही चीज के बारे में आप सोचते रहते हैं, वो ऑब्सेशन हो जाता है। ओके, एंड देन मेनिया, एक्सेसिव क्रेज हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है। ओके, एक तो इल्यूजन होता है, एक डिल्यूजन होता है, आपको लगने लगता है वो वहां पर ऐसा है, तो मैनियक हो जाते हैं, एक्सेसिव क्रेज होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इज मेनिया होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज व्हाट इट इज, यानी आपने ईगो से ही और वर्ड बना लिए और वहां से आपको 5-6 वर्ड मिल गए। देन से अदर्स, अदर्स को इंडिकेट करने के लिए क्या वर्ड होता है भी, अदर्स को इंडिकेट करने के लिए द बुक सेज कि अदर्स के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो अदर्स विल डेफिनेटली टॉक अबाउट व्हाट, कि अदर्स के लिए एक वर्ड है, वो बात करता है कि अदर्स के लिए एक वर्ड है ऑल्टर, ये एक वर्ड है जिसको वो अदर को इंडिकेट करता है। इन लैटिन द वर्ड फॉर अदर इज ऑल्टर, ये ऑल्टर वर्ड है। एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल इंग्लिश वर्ड्स आर बिल्ट ऑन दिस रूट, वो क्या है, ऑल्टर से वर्ड बनकर आया है, कई सारे वर्ड निकल कर आए हैं। देखते हैं क्या कहना चाहता है। अल्ट्रुइज्म, याद है पिछली बार हम कह रहे थे अल्ट्रुइज्म होता है जो बहुत ही सेल्फलेस पर्सन होता है, मैंने कहा बुद्धा होता है, तो आप क्या कह रहे हैं, अल्ट्रुइज्म, द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट्स comes from one of the variant spellings of the Latin alter. Other altruistic actions look towards the benefit of others. किसी के अगर altruistic actions हैं, वो पर्सन तो अल्टरिस्ट हो गया, तो उसका काम कैसा है, अल्टरिस्टिक है, तो अल्टरिस्टिक एक्शंस जो है वो दूसरे के बेनिफिट ऑफ अदर्स ही तो करता है, तो वो बेनिफिट ऑफ अदर्स में होता है नेचुरली। मैंने बोला इफ यू अल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर, सो टू स्पीक एज व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट Saturdays, if you have an alternative, you have no other choice. तो यानी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वर्ड निकल कर आ रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ड निकल कर आते हैं क्या, ऑल्टर। फिर वो कहता है कि आप किसी ऑल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, और आप अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, तो इसका मतलब क्या, ऑल्टर तो मतलब आप स्कूट जब चेंज कराते हो तो क्या बोलते हो, अपना अदर करा देते हो। आपने कहा कि शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे कहा यार इसको ऑल्टर कर दीजिए, यानी जो अभी लुक्स थी उसको अदर कर दिया। फिर ऑल्टरनेट क्या है, यानी एक छोड़कर एक, आपने बोला अल्टरनेट, यानी आप पहले ये ज्वाइन करेंगे फिर ये छोड़ देंगे, फिर ज्वाइन करेंगे फिर ये छोड़ देंगे, यानी आपने ये छोड़ दिया फिर ये करा फिर ये छोड़ दिया, फिर ये करा फिर ये छोड़ दिया। इट मीन्स ऑल्टरनेट करते हैं वन आफ्टर दी अदर। और अल्टरनेटिव क्या है,
आप कह रहे हैं यार मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, मेरे पास कोई और अदर चॉइस ही नहीं थी, तो ऑल्टरनेटिव हो जाता है। तो अल्टीमेटली ऑल्टरनेटिव भी क्या हुआ, अदर ही तो हुआ। मीन्स दैट्स व्हाट इज सेइंग अल्टरिस्टिक एक्शंस। और वहां अल्टरिस्टिक तो एनीवे वी हैव डिस्कस्ड कि वो दूसरे अल्टरिस्टिक कौन होता है भाई, जो अदर्स के बारे में सोचेगा। भाई अगर आप अल्टरिस्टिक बने तो कैसे बने, बिकॉज यू थिंक ऑफ अदर्स, है ना। आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तभी तो अब अल्टरिस्टिक है। यानी अल्टरिस्टिक हो, अल्टर हो, अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेट हो, सब में वर्ड क्या है, ऑल्टर ही आ रहा है, अदर ही आ रहा है। Now what to say? You see how easy it is to understand the meanings of these words once you realize that they all come from the same source, alter. And keeping in mind that alter means other, you can quickly understand वर्ड्स लाइक ऑल्टर ईगो, अल्टरकेशन एंड ऑल्टरेशन। देखो ऑल्टरेशन तो हमने पहले ही बात करी, आपने कहा कि उसको चेंज करवा दीजिए तो ऑल्टरेशन हो गया फॉर श्योर। अब हम कहते हैं कि ऑल्टरकेशन होता है। भाई ऑल्टरकेशन क्या है, ऑल्टरकेशन को हम बोलते हैं ये वर्बल रो होता है। जिसे हम बोलते हैं तू मैं हो जाती है हमारी किसी से, तो ये झगड़ा जो है ना, मुंह से लड़ाई होती है, ये वर्बल रो होती है, ऑल्टरकेशन होती है। तो भी मेरी किसी से ऑल्टरकेशन कब होगी, जब मेरे और उसके ओपिनियन अदर होंगे तभी तो होगी। अगर सेम होते फिर तो झगड़ा ही नहीं होता। तो यानी ऑल्टरकेशन में भी ऑल्टर वो आ रहा है, इसका मतलब वो अदर को इंडिकेट करता है, और ऑल्टरेशन में ऑल्टर को इंडिकेट करता है। और ऑल्टर ईगो क्या होती है, वो आपकी नेचुरली ऑल्टर का मतलब अदर है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये अदर सेल्फ होती है, अदर सेल्फ होती है, इसको अदर सेल्फ करते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। अल्टरिस्ट हमें समझ गए, सेल्फलेस पर्सन। प्रैक्टिस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आई जस्ट नोटेड इट डाउन स्पेशली फॉर यू पीपल, कि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार लोग प्रैक्टिस ऐसे लिखते हैं, कई बार लोग प्रैक्टिस ऐसे लिखते हैं, हालांकि बुक में वहां पर देखो, यहां अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि यहां जो ये प्रैक्टिस है ये नाउन है, और एस वाला जो है वर्ब होता है। एस वाले वर्ब होते हैं, सी वाले नाउन होते हैं। जितने भी वर्ड होते हैं, चाहे प्रैक्टिस हो या लाइसेंस हो या कुछ इस तरीके से, एडवाइस हो या एडवाइस हो, तो ये प्रैक्टिस आपका नाउन है। तो भाई हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान में, भाई टचिंग फीट इज ए कॉमन प्रैक्टिस, तो ये ट्रेडिशन की तरह यूज होता है। भाई हम मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट हम ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर देते, तो रेड लाइट तोड़ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं यार ये कॉमन प्रैक्टिस है, फलां रेड लाइट पर तो सब लोग रूट रेड लाइट तोड़ ही रहे होते हैं, तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया। तो प्रैक्टिस मतलब जो एक रूटीन का ट्रेडिशन जैसा है, जो एक हैबिचुअल हो गया, वो प्रैक्टिस है, तो वो तो नाउन ही हो गया नहीं। पाँव छूना है, किसी के घर पे आकर कोई आपस में चाय पिलाते हैं, तो प्रैक्टिस है। तो ये जो प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करा तो टू वर्क हो जाता है, प्रैक्टिस होता है। यानी टीचर जब ये कहेगी कि यू हैव टू तो प्रैक्टिस दीज सम्स, तब आप मानिए कि यहां पर आपको एस लगाना है। बट हाँ, आप कहते हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिस है तो वो सी लगाइए। मतलब टू आ गया तो टू के बाद तो फिर वर्ब ही आएगा ना, तभी इन्फिनेटिव बनेगा। तो टू प्रैक्टिस में एस लगना चाहिए, हालांकि बुक में वहां पर सी लिखा है, ठीक है। वहां पर बुक में जहां पर भी प्रैक्टिस लिखा है, वहां पर बोला क्या, दी फिलोसफी प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड में वहां पर उसने सी लिखा है। वो फॉरेन राइटर है तो वो इतना बॉदर नहीं कर रहा, वैसे वहां पर एस आना चाहिए था अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो। बट एनीवे वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, बट हाँ वी कैन डेफिनेटली लर्न कि सी और एस में क्या फर्क है। काइंडली नोट दिस वे। तो सेम केस अगर आप एडवाइस बोलेंगे और फिर एडवाइस बोलेंगे तो आपको समझ ही आ जाएगा कि ये एडवाइस मतलब नाउन है, और ये एडवाइस टू वर्ब हो गया। यानी आपने मुझे एक एडवाइस दी, आपने मुझे सलाह दी, तो वो सलाह क्या है, जैसे आपने पेन दिया तो नाउन हो गया एडवाइस, और एडवाइस वाला क्या है, वो वर्ब हो गया। ओके चलिए आगे। तो सी वाले जितने भी होंगे, चाहे प्रोफेसी हो जाए, प्रोफेसाइज हो जाए, या लाइसेंस हो जाए, या लाइसेंस्ड टू किल हो जाए, तो सी में नाउन होगा, एस में वर्ब होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव, आपको पता ही है, आपने कहा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, चॉइस नहीं थी। पर ऑल्टरनेट वन आफ्टर द अदर, ऑल्टरनेट सैटरडे ही वाज सेइंग, एंड देन ऑल्टरकेशन आई टोल्ड यू दिस वर्बल रो होता है, तू मैं हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वट एवर हेल्प वी कैन गेट फ्रॉम दैट वर्ड, चाहे वो प्रैक्टिस हो जाए, चाहे वो अल्टरकेशन हो जाए, चाहे अल्टरिज्म हो जाए, वी नीड टू गो
आवर वी नीड टू रियली एक्सपैंड आवर नॉलेज, उसका हमें एक बड़ा एरिया बनाना है, हॉराइजन को डेवलप करना है, दैट इज व्हाट द गोल। सिर्फ वर्ड पढ़ ली है और मैंने बुक पढ़ ली है, आई थिंक दैट इज नो आइडिया। बहुत सारे लोग मिलते हैं जी मैंने बुक तो पढ़ ली, मैंने तो 20 चैप्टर पढ़ लिए, और बीच वाले वर्ड कभी आपने बॉदर करा ये ऐसे है? नहीं जी, वो तो देखा ही नहीं, तो लॉजिक नहीं है। अभी हमारे पास ऑल्टर ईगो बची है, उसके बारे में बात करते हैं। An alteration is, of course, a change, making into something other. When you alter your plans, you make your other plans. Okay, I told you, जो आप change करते हो तो होता है ना altercation होता है। Altercation is a verbal dispute. When you have an altercation with someone, जब आपका किसी से झगड़ा होता है, मतलब तू मैं होती है, you have a violent disagreement, a fight with words. फाइट विद वर्ड्स होता है। एंड वाई? बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज। यहां पर वो बात करता है क्यों होती है आपकी अल्टरकेशन, बिकॉज यू हैव other ideas, plans and opinions than those of the person on the other side of the argument, जो दूसरी तरफ होता है उससे हटकर होते हैं। then अगर एडजेक्टिव जानते हो तो then के बाद those of लगाया है, कभी डिस्कस करेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे कि then those of हो जाता है, then those of the persons of the other side of the argument. Altercation, by the way, is stronger than quarrel or dispute. जो altercation होती है वो क्वेरल से ज्यादा बड़ी होती है। ओके, द सेंटिमेंट इज मोर हीटेड, हम ये कहते हैं द डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एन एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड हो जाता है। क्या कहना चाहता है? ऑल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर देन क्वेरल और डिस्प्यूट। क्वेरल हुआ, डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट का मतलब तो मतभेद है, ठीक है, आपका मेरा डिस्प्यूट है जिस चीज को लेकर, ये डिस्प्यूट हो गया, आप मान रहे हैं मैंने नहीं मान रहा हूं, ये लग होता है, डिस्प्यूट होता है, उसी पे क्वेरलिंग भी हो सकती है। लेकिन ऑल्टरकेशन क्वेरलिंग से ज्यादा हायर लेवल का होता है, ही सेज, ये ग्रेटर होता है कंपैरेटिव टू, अगर आप बात करें क्वेरल के और डिस्प्यूट के। ओके, दिस व्हाट ही सेज। एंड देन द सेंटिमेंट इज मोर हीटेड, गर्मा गर्मी ज्यादा हो जाती है। द डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड। देयर में बी रिकोर्स, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपस में कुछ एडजस्टमेंट कर पाए। इफ द डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन, टू प्रोफेनिटी और ऑब्सैनिटी। पर रिकोर्स यही होगा कि अल्टीमेटली आपकी प्रोफेनिटी हो जाएगी, इंसल्टिंग हो जाएगी, ऑब्सैनिटी वल्गैरिटी हो जाएगी, बस इतना ही होगा। अगर इसमें तो यही है, जैसे तू मैं हो जाएगी, आप अल्टीमेटली यू विल एंड अप having bad taste. You have altercations, in short, over pretty important issues, and the word implies that you get quite excited. इससे समझ आता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं। ऑल्टर ईगो क्या है? ऑल्टर ईगो मैंने कहा था अदर सेल्फ होता है, विच कंबाइंस ऑल्टर एंड अदर विद ईगो। मैं तभी बोला कि अदर सेल्फ होती है। सेल्फ जनरली रेफर्स टू समवन विद whom you are so close that you both do the same things, think alike, react similarly and are in temperament, जहां तक अपने नेचर की बात करते हैं, almost mirror images of each other. आप जैसे मान लीजिए आपका एक एक्स फ्रेंड है, ओके, और आप वाई हैं, तो अगर आप किसी दिन क्लास में नहीं आए तो मैंने मान लीजिए एक्स से पूछ लिया कि हाँ यार वो क्या करना है, तो वाई के बारे में क्या ओपिनियन है, आप कहेंगे जी वो भी यही कहेगा। और आप अगर किसी दिन वो नहीं आया और आप आ गए और मैंने आपसे पूछ लिया वो कैसे करेगा, तो आपको पता है यार वो वैसे ही करेगा। यानी क्या बोलते हैं, यू बोथ डू द सेम थिंग्स, यू थिंक लाइक, रिएक्ट सिमिलरली एंड आर इन टेम्परामेंट, जहां तक मूड की बात है, ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड सच फ्रेंड इज योर अदर आई। वो नेचुरली आपका अदर आई होता है, योर अदर सेल्फ, योर ऑल्टर ईगो हो जाता है, वो आपकी ऑल्टर ईगो होती है। ओके, नो ऑल्टर ईगो के दो वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में दिए हैं, और ये फॉर श्योर एक वर्ड मीनिंग तो ये है कि वो आपका सिमिलर होता है, लेकिन एक ऑल्टर ईगो वो भी होती है जो आपकी दूसरी सेल्फ होती है। भाई बाहर हम बड़े नो कूल रहते हैं, बड़ा ब्रेव फेस रखते हैं, बट इंटरनली हो सकता है द पर्सन इज वेरी वायलेंट, उसके लाइफ में बड़ी उथल पुथल चल रही हो, वो उसकी ऑल्टर ईगो है, तो वो उसकी मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज एक जैसी दिखती है लेकिन लेफ्ट राइट में दिखता है, अगर आप ध्यान से देखो नहीं, तो मतलब क्या हुआ, वो एग्जैक्टली तो नहीं रहता जैसा आप होते हो। तो यानी जो मिरर इमेजेस में आपको उल्टा भी मान सकते हो। अल्टरेशन मैंने बता ही दिया। प्रोफेनिटी मैंने बोला नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर किसी रिलीजियस चीजों के अगेंस्ट आप कुछ बोलते हो तो वो प्रोफेनिटी हो जाती है, लेकिन प्रोफेनिटी को कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से लें तो ऐसे में डिसरिस्पेक्ट में भी लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं लिखते। एक आपने वर्ड सुना हो इररेवरेंट हो जाता है, तो मतलब वो कंसिडर कर लेते हैं डिसरिस्पेक्ट में भी, अगर ऐसा नहीं है
ये वर्ड सॉरी प्रॉब्ली शायद आपको ना समझ आए, डिसरिस्पेक्ट होता है। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट हो सकता है और इररेवरेंट हो सकता है, इंसल्टिंग भी हो सकता है। प्रोफेनिटी वैसे तो यूज होता है रिलीजियस प्रैक्टिस की चीजों को इंसल्ट करने के लिए। एंड देन वी सी ऑब्सैनिटी, वल्गर जिसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भद्दा, वो वाला होता है ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी। जैसे डिसेंट और मोरालिटी के हिसाब से आप बड़ा ढंग से पेश आएंगे, लेकिन अब वहां पर आप बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो फिर आप बड़े वल्गर हो जाएंगे। प्रॉब्ली यू आर यूज अब्यूजिंग एवरी पर्सन, कॉलिंग नेम्स, वी से abuse, it means if you're doing all this, it means you are vulgar, you are repugnant, you are offensive, we say. So using offensive language which is really not diplomatic, which is not as per the accepted standards of morality and decency, we call it this obscene होता है। We find सीन obscene हो जाता है मूवी में, या जो लैंग्वेज होती है वो obscene हो जाती है। ऐसे लोग कई बार ट्विटर पर लोग फाइट कर रहे होते हैं, आप देखिए बड़ी वल्गर लैंग्वेज यूज की होती है, obscene हो जाता है। एंड देन ऑल्टर ईगो, ए क्लोज फ्रेंड हु इज वेरी लाइक वन सेल्फ, ये तो उसने बोला ही था। लेकिन दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ए पर्सन सेकेंडरी और अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, मैंने आपको बोला सेकेंडरी और अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी, वो आपकी दूसरी वाली सेल्फ होती है, वो एक ऐसे भी यूज करते हैं ऑल्टर ईगो। एंड देन रिकोर्स, ए सोर्स ऑफ हेल्प इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एड एंड एक्सपीडियंट हो जाता है। यानी ऊपर उसने लिखा था ना, देयर में बी रिकोर्स, उसमें कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है, यानी आप वापस आ सकते हैं, यानी थोड़ा सा बेटर हो सकता है इफ द डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन। लेकिन टू प्रोफेनिटी और ऑब्सैनिटी, अल्टीमेटली होगा क्या, उसमें वल्गैरिटी ज्यादा आ जाएगी, उसमें ऑब्सैनिटी आ जाएगी। नेचुरली जब आप किसी से झगड़ा करेंगे तो फिर उसके बाद जो भी एंड अप होगा, चाहे कितना भी पैचअप कर लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं बैड टेस्ट रहते ही है। ओके, दिस व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। तो ओवरऑल अब आप देखिए तो आपने क्या वर्ड पढ़ा, ओवरऑल आपने वर्ड पढ़ा ऑल्टर और ईगो, और वहीं से आपने सारे वर्ड निकाले, और वहीं से आपने पढ़ा ईगो और इस्ट और ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियक, यही वर्ड आज हमने पढ़े हैं, और अल्टरिस्टिक हो जाता है। तो दिस वे वी कम टू द end of the session 2. So in this session is a very small session, we have read a few words, and from there we have acquired around 15-20 words, maybe 20-25 words we have learned today in this session. Kindly revise this. I'll meet you in the session 3 again. Thank you very much for watching. God bless you.